Welcome to another episode of Tripping with Shanks. All of 25 years of age and some serious numbers of kilometers under his belt on two motorcycles. Used to ride a Bullet and he's done 17,000 kilometers on his Continental GT. We will have a chat with him today to figure out about his experiences on what all he has done and why he's so passionate about motorcycling. Meet Akshmohan Singh Narula. लोग बोलते हैं वाली बात कि कैसे चलाते होगे बाइक को, मतलब हेल्थ है आपकी, इशू आता होएगा। मेरे को किसी तरह से बोला था एक दिन, तू तो इतना मोटा है, बाइक पे कैसे आता है, चलाता कैसे है। ये जो मेरी बाइक है, इस बाइक, हाँ, ये मेरे को जज नहीं करती, ये मेरे पे कमेंट्स पास नहीं करती। मैं इस पर बैठता हूँ, ये चलती है, मैं रुकता हूँ, ये रुकती है, कहीं जाता हूँ, ये जाती है। Hi Aksh, how are you? Fine, I'm fine. Aksh, I wanted to check with you, man. What really got you into biking? So in 2014, when I was in college second year, so my brother bought a Bullet 350. All right. So the funny part is, after buying the Bullet, after just 2 days after buying the Bullet, he got transferred to Agra. So Bullet was mine. 2018 तक मैं मोटरसाइकिल चलाता था, बट मेरे को मोटरसाइकिलिंग क्या होती है वो नहीं पता था। लाइक व्हाट इज़ द रियल मोटरसाइकिलिंग, क्या होता है उसके अंदर। एंड मैं राइडिंग गियर नहीं डालता था, ना मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता थी कि इज़ इट नेसेसरी, इट इज़ नॉट, और क्या है उसका मतलब, लाइक मेरे को नहीं पता था। No helmet, no jacket, no gloves, no shoes. I used no to have riding gloves. pants. I used to have gloves. Cut gloves, huh? By any No, chance? no, 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 no. It was normal, like वो कौन सा आता था, प्रो बाइकिंग, like generic gloves. So वो gloves थे just for the grips कि अच्छा लगता था. But एक टाइम आया when I used to see YouTube videos, मैं उनसे इंस्पिरेशन ली, कई बाइकर से, वो लद्दाख जाते थे, तो मेरे को लगा कि मोटरसाइकिलिंग पे ये भी हो सकता है। लाइक एक फीलिंग तो आती थी चलाते हुए कि व्हेन यू आर राइडिंग योर बाइक, आपके मुंह पे हवा पड़ रही है, आप फ्रीडम है आपके पास, आप चला रहे हो, बाइक जब कॉर्नर पर जाती है तो एक फ़ील आती है बाइक के साथ कि आप वो बाइक हो और ये आपकी दुनिया है, चलाओ। How many kilometers did you ride that Bullet, by the way? My Bullet has clocked over 50,000 kilometers. On by you alone or No, by? almost 35,000 kilometer मैंने किए हैं, rest 15,000 done by my brother. Tell me something, Aksh. Honestly, हाँ. you 35,000 kilometers is not a joke on a motorcycle, and you're talking about less than 5 years. Yes. And you must have done this 35,000 before you picked up this motorcycle. या 2 साल पहले ये आई, हाँ. तो मतलब 2014 से 18 4 साल में उसमें मैंने 30,000 किलोमीटर्स कर लिए थे। इसके आने के बाद मैंने उसको बहुत कम चलाया। Dude, I'm just trying to figure out, you're a large guy. Yeah. You used to go on a motorcycle and 30,000 kilometers. Don't you find it difficult to ride? Don't you find it, what do you call it? Don't you feel uncomfortable on a motorcycle? Because people who are heavy normally say that, यार मेरे को मोटरसाइकिल नहीं चलाना, मेरे को कार चलाना है. So एक बंदा अगर बोलता है कि आई फील अनकंफर्टेबल ऑन अ बाइक बिकॉज आई एम हैवी, वो तभी बोल सकता है व्हेन ही यूज्ड टू बी स्लिम। So you learn to manage your weight. So मेरे को कंपेयर करने के लिए कुछ पता ही नहीं। सो मैं जैसा हूँ मैं वैसे बाइक चलाता हूँ, मेरे को मज़ा आता है। सो अनकंफर्टेबल लगता होगा, बट मेरे को नहीं पता कि कितना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन बाइक चलाने में जब मज़ा आता है, आई फॉरगेट एवरीथिंग, आई जस्ट राइड माई बाइक। So the pure joy of motorcycling itself is enough to overcome all the discomfort that you feel. Yes, yes. Aksh, tell me something. On a motorcycle, I mean, you make a motorcycle look small. All right. So I'm just trying to figure out. Has anyone ever asked you or made fun of you when you were riding a motorcycle? Yes, many times. And how do you take it? So मोटरसाइकिलिंग में जो भी है ब्रदरहुड है, मतलब हर कोई चाहे मजाक में बोलता है, कोई सीरियस वे में बोलता है। लोग बोलते हैं वाली बात कि कैसे चलाते होगे बाइक को, मतलब हेल्थ है आपकी, इशू आता होएगा। मेरे को किसी तरह से बोला था एक दिन, तू तो इतना मोटा है, बाइक पे कैसे आता है, चलाता कैसे है, बाइक टूट जाएगी, मतलब लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स आते हैं। कभी कभी मजाक के वे में आते हैं, सामने से मजाक आता है, मैं भी मजाक ले लेता हूँ, लेकिन कभी कभी सीरियस भी लगता है वाला मजाक सामने से, मतलब उन्होंने मजाक में बोला, मैंने सीरियसली ले लिया, बट मेरे और मेरी बाइक के बीच में वो नहीं आता। सो द बेस्ट पार्ट कि जो मेरी बाइक है, दिस बाइक, ये मेरे को जज नहीं करती। ये लेके जाती है। हाँ, ये मेरे को जज नहीं करती, ये मेरे पे कमेंट्स पास नहीं करती। मैं इस पर बैठता हूँ, ये चलती है, मैं रुकता हूँ, ये रुकती है, कहीं जाता हूँ, ये जाती है। Beautiful. Look at the complete difference
Here's a guy who's ridden 30,000 to 35,000 kilometers on a bullet, which is an extremely relaxed stance. He is also one of the few people who's managed to tour 17,000 kilometers on a GT. And people say the GT is not for touring. How do you manage it? सो 2019 जनवरी ये बाइक मैंने ली, मेरे पास आई. सो Why a Continental GT? It is So- not even a comfortable motorcycle for touring. या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया शोरूम. मैंने दोनों बाइक की टेस्ट ड्राइव ली. आई टेस्ट रोड द इंटरसेप्टर, चलाई, मज़ा आया चला के, ठीक है. कंफर्टेबल पोजीशन लगी, सेम एज माई लाइक बुलेट लगी कि मेरे को कंफर्टेबल पोजीशन लग रही है और पावर लग रही है, स्मूथनेस है. फिर मैंने कहा ये चला के देखनी है. शोरूम वाला भाई कहता कि दोनों बाइक सेम ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो बस ऐसे है, टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं है हमारे पास शो पीस खड़ा हुआ है अंदर शोरूम में. मैं कहा नहीं, मेरे को चलानी है. उसने शो पीस को शोरूम से बाहर निकाला मेरे कहने पे. मैंने कहा चलेगी, चाहिए. मैंने चलाई है बाइक. आई वॉज ब्लोन अवे विद द स्टांस. आई वॉज लाइक कि सिर्फ स्टांस का डिफरेंस आने से इतना मज़ा आया मेरे को बाइक चला के. आई वॉज लाइक कि इसको भगाने में मज़ा आ रहा है, इसको मनूवर करने में मज़ा आ रहा है. सो आई वॉज लाइक कि मेरे को लेनी तो जीटी है. So you changed your mind completely from an Interceptor to a GT just because of the exhilaration. just in 15 minutes. So I was Okay. like कि इसको ले लेंगे, टूरिंग देखी जाएगी, देख लेंगे, जिस मर्जी पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टूरिंग करनी भी पड़ी तो. So और उसके बाद भी आपने बहुत सारा टूरिंग किया है. You have toured for almost 17,000 kilometers. yeah, 17,000 kilometer on this and almost 2 long trips on my bullet. Dude, you said you've done 17,000 kilometers and you took the GT simply because of the stance. But what I see is that this handlebar is of the Interceptors. It's not the GT handlebars. Yes. So why did you shift onto the handlebars? So it's also an interesting story. I'll tell you later about it. So Okay. अभी बाकी की बात करते हैं. Suspense build up हो रहा है. सो अब मैंने ये बाइक ले ली, अब टूर तो करना है. सो आई मेट द ग्रुप ट्रिपर्स, उनसे मिला एंड आई मेट द गाय मुदित फॉर द फर्स्ट टाइम इन करोल बाग. मैंने उनसे बात करी, आई एक्सचेंज द नंबर, फिर हम ग्रुप में आया मैं उनके साथ. सो वी वेंट टू दैट फर्स्ट ट्रिप टू नो कोचियाताल. आप मेरे साथ थे उस ट्रिप पे. Yes. सो इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप ऑन GT एंड पूरे ट्रिप में बारिश आई, पूरे राइड में. What a memorable trip that was. So that was approximately a 8-hour journey or 7-hour journey. It almost took a 12-hour. Correct. Yeah. So पहला एक्सपीरियंस ऐसा रहा, बट बाइक में मज़ा आया चला के. तो इट वाज लाइक कि आपके पास अगर एक बाइक है, अच्छी है, आप ये सोचो कि जब मेरे पास एक अच्छी बाइक आएगी तब मैं टूर पे जाऊंगा. अगर ये सोच के मैं बाइक ना चलाता तो मैं ना कर पाता टूर. बट मेरे दिमाग में था मेरे को राइड करनी है विच एवर बाइक आई हैव. तो मेरे पास ये बाइक थी, मैंने इस पर टूर किया. Have bike, will ride. Nice. Very nice. Yes. So one other question that I had is, what got you? I remember you told me that you were not using gear when you were on the Bullet. When you got the GT, what made you think of gear, and what gear did you buy? As I told you कि I used to watch YouTube videos of motorcyclists. वो लद्दाख जाते थे, they go to Spiti, and मैं उनसे इंस्पायर हुआ. मैं देखा उनको, मेरे को भी आया कि बाइक चलानी है. And they all यूट्यूबर्स जितने भी हैं, उनकी सबसे अच्छी बात यही है, सब राइडिंग गियर को प्रमोट करते थे और पहनते थे. लाइक ऐसे नहीं बोलते थे कि पहनो, अगर वो अपनी वीडियो में डाल के आते थे तो इनसे मेरे जैसा, जैसे मैं हूँ, मैंने इन्फ्लुएंस हुआ उनसे. और मैंने जॉइन द ग्रुप ट्रिपर्स में आके मेरे को राइडिंग गियर की इंपॉर्टेंस पता चली. सीनियर राइडर्स थे वो. मेरे को तो अगर मैं यूट्यूब वीडियो देखता था, मेरे को पता था जैकेट इंपॉर्टेंट है, हेलमेट इंपॉर्टेंट है. मेरे को राइडिंग पैंट के बारे में नहीं पता था, मेरे को शूज़ के बारे में नहीं पता था, ग्लव्स के अंदर सही क्या होता है, जैकेट के अंदर आर्मर कौन सा चाहिए होता है. मैं तो गया और मैं ख़रीद लाया सामान, बट उसके अंदर भी देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेफ्टी. उसके बारे में मेरे को पता चला, इंपॉर्टेंस पता चली क्या होती है. सो आई एम अ गाय जो फुल गियर अप होके हमेशा राइड पे जाता है. मैं नहीं तो नहीं जाता. Including the helmet. या हेलमेट, ग्लव्स, So how do you जैकेट. handle your pug and your helmet if you have to go for a official meeting or official or ceremonious meeting? या इफ़ आई हैव टू गो टू अ प्लेस जहाँ मेरे को पगड़ी बांध के जाना है एंड बाइक पे जाना है, सो आई कैरी माई टर्बन इन माई बैग. जहाँ पे पहुँचे अपना हेलमेट उतारा, उसको रखा, अपनी पग बांधी, देन मीटिंग में गए, बात करी, वापस आए, रिमूव द पग प्रॉपरली, केप्ट इन माई बैग और हेलमेट पहना और घर आ गए.
And you can actually do that. How long does it take you? So it takes me 5 minutes to wear my turban. That's all? Yeah. You mean people are sacrificing wearing a helmet because they don't want to take 5 minutes of their time out to wear a pug? Yes, actually yes. But उसके पीछे कई और रीज़न भी हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल भी हैं कि some people say कि it's like disrespecting your turban if you're wearing a helmet. But वो सब चीज़ें दूसरी तरफ हैं. असली में रीज़न यही है कि कई लोगों को आलस होता है या कई लोगों को नहीं डालना होता है, तो बट गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड है. यू कैन वेयर अ टर्बन एंड राइड योर मोटरसाइकिल. इट्स, आप कह सकते हो कि एक एक्सटेंट तक ये टर्बन सेफ है, बट इट्स लाइक अ ओपन फेस हेलमेट. जैसे आप बात बोलते हो, जो द पीपल हु आर इनटू मोटरसाइकिलिंग दे नो कि ओपन फेस हेलमेट इज ऑल ऑल्सो नॉट सेफ. वो भी ओपन फेस हेलमेट की भी कोई सेफ्टी नहीं है. इफ़ यू फॉल, ये तो ओपन ही है सामने से. सो फुल फेस हेलमेट सबसे कंपलसरी है इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक. सो मैंने अपनी तरफ से रखा कि सारे गियर्स पहनने, नहीं तो डालने ही नहीं है. Very good. One point I have for you here. With your weight, do you find any health conditions that stop you from riding, from touring, or doing anything? Or your family, for example, are they okay with you riding the way you ride, or do they have any concerns about your health? सो हेल्थ के बारे में अगर आप बोलोगे, हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट है. अगर अगर 10-12 घंटे से ज़्यादा की राइड हो जाती तो बैक में थोड़ा सा दर्द होता है. बट मैंने जितने भी राइडर से पूछा, सबको होता ही है. किसी ना किसी को 10-12 घंटे चलाने के बाद किसी ना किसी को बैक में प्रॉब्लम होती है. बट उसके लिए भी जब मैं अपनी राइडिंग जैकेट पहनता हूँ, व्हेन आई हैव अ बैक आर्मर, तो उससे बैक को सपोर्ट मिलता है. बैक सीधी रहती है तो बैक में भी इतना इशू नहीं आता. बट मैंने इसीलिए, अब मैं इसके बारे में बात करूँगा, वाई आई स्विच टू दिस हैंडल बार, इंटरसेप्टर हैंडल बार. तो इंटरसेप्टर के बारे में जो बात है कि इंटरसेप्टर इज़ अ कंफर्टेबल पोजीशन, जीटी के अंदर एग्रेसिव पोजीशन है. तो आप स्टार्टिंग की 50% राइड तो इन्जॉय करोगे लॉन्ग राइड पे, लेकिन लास्ट का जो 50% होगा, जब आप थक जाओगे, सो आपकी जीटी का पोस्चर आपसे पूरी डेडिकेशन मांगता है. वेरी अग्रेसिव स्टाइल. या तो आपके हाथों पे भी जोर पड़ता है, आपकी कमर पे भी, आपके पैरों पे भी. सो जब आप, व्हेन यू आर टायर्ड, you cannot ride a GT for long. It's actually meant for shorter bursts actually. Yeah. So मैंने हैंडल बार लास्ट के 50% राइड के लिए चेंज किया. सो सबसे लंबी राइड अभी अगर आप पूछोगे मेरे से एक दिन के अंदर, वी डिड दिल्ली टू जोधपुर इन सिंगल गो. सो इट टुक अस 12 hours and almost we did 700 kilometers in a day. So I was on a GT. मैंने 700 किलोमीटर एक दिन में किया. सो मेरे लिए अपने आप में एक मिशन था, या मेरे लिए अपने आप में एक अचीवमेंट थी कि मैंने इस पे 700 किलोमीटर्स किए एक दिन के अंदर. But that's amazing actually. 700 kilometers on a GT on one day. It's a very good achievement. Yeah. It actually it demands some serious amount of fitness, by the way. And just showing that you have done that is something big, by the way. So इससे पहले एक और राइड थी. We went to GB. We directly went to GB from Delhi. It was around 500 something kilometers, जिसमें से almost half of the way was mountains और टूटी सड़क थी. The road was bad, broken, full of potholes. Half roads the way I call it. So it almost took us 15 hours to reach GB. So 15 घंटे इसको चलाया. So वो मेरा टेस्ट था. वो मेरा लाइक लास्ट के 5 किलोमीटर में आई वॉज लाइक कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ना करना है. आया हूँ, यहाँ तक आया हूँ बाइक के लेकर, तो 5 किलोमीटर हो रहा गई है तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सो उस दिन भी लाइक आई रोड इट फॉर 15 hours इन अ डे. सेम गोज़ फिर राजस्थान राइड उसमें. सो इन द इट वॉज अ 5-day राइड. वी ऑलमोस्ट रोड फॉर 2500 kilometers फॉर 5 days. सो इट्स एवरेज ऑन 500 kilometers per day. Which is an extremely good undertaking which you have managed to accomplish actually then. Yes. Because 500 kilometers a day, 5 days continuously, 2,500 kilometers, not a small joke, by the way. Yes. So my point is again simple. Are there any hindrances from the family, from anybody, let's say, are they comfortable with you doing this kind of rides? स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू हुआ था कि देवर लाइक कि हाँ, मेरे को याद है नौकोचियाताल वाले राइड में आपके पापा जी भी आए थे. हाँ. एंड आई रिमेंबर ही केम एंड मेट अस जस्ट टू टेल अस दैट प्लीज बी केयरफुल विद माय सन, ही इज गोइंग टू बी कमिंग ऑल द वे फॉर टू नौकोचियाताल. यस. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, डिड दैट हैव एनी काइंड ऑफ बेयरिंग ऑन योर अदर राइड्स? हाँ, मेरे घर से थोड़ा सा इशू होता है. मेरे घर वाले सोचते हैं कि
घर वालों के हिसाब से आई वाज लाइक कि मैं कुछ ना कुछ गलती करूंगा, उनको ऐसा लगता है कि नहीं है मैंने आज तक, बट उनको हमेशा लगता है कि आई एम ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग एनी मिस्टेक ऑलवेज। सो वही है, उनकी तरफ से आता है कि उनको थोड़ा ध्यान रखना होता है। उनको 2-3 बारी मैं राइड्स पे गया, लाइक आई वेंट टू नोकचियाताल, देन आई वेंट टू जीबी, देन आई वेंट टू राजस्थान। अच्छा किया, देन उन पे भरोसा आया, देन नेक्स्ट राइड के लिए दे आर ओके कि अब तू जा सकता है, कोई इशू नहीं है, तूने कुछ ऐसा नहीं किया, गलत नहीं किया। तेरे ग्रुप वाले जो द पीपल यू आर राइडिंग विद, वो भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छे से राइड करते हैं। दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, राइडिंग गियर डालते हैं सारे के सारे, वो रिस्पॉन्सिबली राइड करते हैं सब के सब। तो उनको भी एक भरोसा बना कि जिनके साथ जा रहा है दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल पीपल। Yes, I realize that that's a big strong Yes. thing actually to say when you have a riding group which is extremely responsible. I realize how much of comfort that gives to the family as such. Even for me, for example, when I ride, when I used to ride early days, my family used to be pretty worried actually. And by the way, I also used to have the same problems. I used to weigh quite a bit actually. You know. I used to be about 140 kilos, and I used to do 350, 400 kilometer rides. And we used to do it on pretty much slower motorcycles, by the way, than a GT or an Interceptor which are available today. And the 350 kilometers we used to do in 12 hours. So I'm just thinking about it from a fitness perspective. It's not about the amount of distance you're traveling, it's about the kind of time you're spending on the saddle. Yes. And you know, riding on the saddle, figuring it out, and if you're able to do 15 hours on a saddle, it's a kudos to you, honestly. So I think it's an extremely strong, extremely bold statement that you are making, that you know that weight has no issues on riding. If you want to ride, you can ride. When you got to ride, you ride. So Have bike, will ride. yeah. So एक और बात भी है, just I want to tell the viewers who are watching the video कि it's GT is not the reason I started touring. कि ये नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि ये बाइक आएगी, कई लोग बोलते हैं कि यार हम भी लेंगे 650, देन वी स्टार्ट राइडिंग लॉन्ग टूर्स, हम तब जाएंगे टूर पे जब हमारे पास ये होगी। जरूरी नहीं है आपके पास बाइक होनी चाहिए। मैंने अपने 2 लॉन्ग ट्रिप्स आई डिड ऑन स्टैंडर्ड 350 ऑल्सो। आई वॉज विद माई फ्रेंड ऑन अ स्टैंडर्ड 350, मी with my friend as a pillion with the luggage, दोनों का luggage, we did GB on standard 350. And drum how long brakes. did it take you at that time? Huh? And how long did GB take you at that time? So मैं directly GB नहीं गया, we took a stop at Shimla. So first day Delhi to Shimla, then night का stop लिया, then next day to GB. So you broke the journey down. Yes. So okay, good. But also if you have a pillion, honestly, it is not easier. It makes it that much more difficult, by the way, when you have Yes. a pillion. Yes. So I can imagine how difficult it must have been. Even the 300 kilometers to Shimla must have been quite an ordeal for you. It Yes. would have taken you at least about So- 9 to 10 hours. 12 hours to Shimla. So breaks लेते लेते गए थे. It was my first ride. Yes, I can imagine. Yeah. So 350 after all. Yes. You would have been touching a max speed of 70, 80, 90 90 kilometers. 90. I was cruising at 90. Once you cross the Chandigarh, जब शिमला का पहाड़ स्टार्ट होते हैं, तो 350 इज़ वेरी कंफर्टेबल बाइक ऑन माउंटेन्स। आप वहाँ पे नॉर्मल बाइक्स की एवरेज स्पीड पे ही चलाते हो। ऑन अ हाईवे इट्स अ स्लोअर बाइक, बट आफ्टर यू क्रॉस द चंडीगढ़, शिमला का पहाड़ शुरू होते हैं, देन आपकी एवरेज स्पीड नॉर्मल बाइक्स के बराबर आ जाती है। सो कोई ईजी पीजी। Till now, we've been hearing a lot of stuff from Aksh about how he started this monumental journey, how he has taken the movement from a Bullet to a GT, Continental GT, to riding up the Pug, now moving to a completely geared person, wears a jacket, wears gloves, wears a helmet, has explained to us that there are so many easier ways to ride responsibly today. Yes. You know, he wears his Pug before meetings. He takes it 5 minutes is all he needs to Yes. take out of his time. Yes. He gets it done. He also talked to us about how judgmental people are about riders and their machines in case they are not fit. He's also talked to us about the joy that he has received from his motorcycle because of his riding. And most important of all, he's talked about riding 15 hours on the saddle, 18 hours on the saddle, Yes. 5 days continuously. Yes. These are things that are not to be taken lightly. Take it from me, guys. I have done my fair share of riding over the last 25 years, and hats off to you, Aksh, honestly, for the kind of work that I've seen you bring out on your motorcycle. I believe you also
service your motorcycle yourself, right? Yeah, in the lockdown period, I learned how to service the bike, and last year I went to a workshop to learn how to use tools on bikes. So lockdown में I got a chance कि there was no shop open. I had the engine oil, I had the oil filter, I had all kind of tool at home. So I was like, मेरा घर नीचे parking खाली, the whole world is closed. So I am gonna work on my bike myself. So I opened my Bullet, उसमें ऑयल खोला, ऑयल चेंज किया, आई पुट द इंजन फ्लश एंड देन इंजन ऑयल फ्लश किया एंड इंजन ऑयल नया डाला, एयर फिल्टर डाला, बाइक को रेडी किया एंड चलाई. सक्सेसफुल हो गया वो. आई वॉज लाइक कि मेरे को लगा था कि 2 दिन बाद ऑयल लीक होएगा नीचे से. सो वो सक्सेसफुल हुआ. देन अब इसकी बारी आई. अब लॉकडाउन खुल भी चुका था बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं सर्विस कर सकता हूँ. सो मैं इसका टूल खरीदा टू रिमूव द ऑयल फिल्टर. यू नीड अ स्पेशल टूल. खरीदा, रिमूव किया, देन इंजन ऑयल फ्लश किया, नया इंजन ऑयल डाला एंड इस बाइक को भी मैंने सर्विस किया खुद करके. सो सेटिस्फैक्शन मिलती है व्हेन यू वर्क ऑन योर मोटरसाइकिल योरसेल्फ. सो एक कनेक्शन बनता है मोटरसाइकिल के साथ. अगर अपनी बाइक पे आप छोटा मोटा काम खुद करोगे, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बाइक, आपका और बाइक का आपस में कनेक्शन बिल्ड होगा. यू नो योर बाइक बेटर. अगर आपकी बाइक में इलेक्ट्रिकल का छोटा मोटा अगर आप काम जानते हो तो हर बात पे आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. आपकी बाइक से जितना आप खुद काम करोगे उतना कनेक्शन अच्छा होगा. सो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि छोटा मोटे से शुरू करो, छोटे से शुरू करो, बट स्टार्ट डूइंग समथिंग विद योर बाइक ऑन योर ओन. But it brings back the old adage to my mind. If you want it enough, you will do it. Yes. And if you love it enough, you will do it. Yes. And your love for the motorcycle and motorcycling in general Yes. is pretty much evident actually. Very few people actually that you really see in today's world who are that connected. It brings to mind legends like Steve McQueen, for example, who used to work on their own motorcycles, were complete motorcycle buffs, had zillions of motorcycles. But you are a inspiration to us, honestly. So what are your next plans now, by the way? सो अब मेरे ग्रुप को पता है कि मेरे दिमाग में 10 बाइक्स रहती हैं आगे खरीदने के लिए, और ख़रीदूंगा मैं 11 नंबर बाइक. सो अभी प्लान बन रहे हैं बाइक्स के बारे में. सो आई एम स्टिल कंफ्यूज कि अगली बाइक क्या होनी चाहिए. अभी के लिए मैंने इसका हैंडल बार चेंज किया. आई एम गोना डू सम सीरियस लॉन्ग टूर्स ऑन दिस एंड प्लान है टू टेक इट टू लेह लद्दाख एंड टेक इट टू स्पीति वैली समवेयर. करना है कुछ अभी, जब लाइक द बार का सिचुएशन अगर ठीक होती है तो इस पर भी लॉन्ग टूर करने हैं. रेस्ट मेरे को ये करना है कि मेरे को प्रॉपरली पूरी बाइक पे अपना काम करना सीखना है, बट वो आई एम लर्निंग धीरे धीरे. तो जैसे जैसे होता जाएगा तो पूरी बाइक पे. हेल्थ का क्या है? व्हाट आर यू गोइंग टू बी डूइंग अबाउट दैट? सो हाँ, मेरे को ये भी मैसेज देना था बट कि मैं पॉजिटिविटी दी कि इफ़ यू आर नॉट इन शेप और इफ़ यू आर लाइक आपका वेट ज़्यादा है, इट्स अ टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग कि आपको अपने आप को जज नहीं, दूसरों की बातों को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए. बट दूसरी जगह पे ये है कि हेल्थ, ऐसी हेल्थ में रहना भी ठीक नहीं है. यू शुड मेंटेन, स्टार्ट डूइंग समथिंग. मैंने भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालने शुरू किए हैं कि मैं भी शेप में आऊँ. अगर मैं शेप में आऊँगा, मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी. आई कैन राइड द बाइक फॉर मोर आवर्स, फॉर मोर किलोमीटर्स. मेरे लिए बेटर होगा, मेरी हेल्थ के लिए बेटर होगा. अगर मैं 10 घंटे बाइक चला रहा हूँ, मेरी बॉडी पे 20 घंटे का असर पड़ रहा है, तो मैं अपने आप को भी डिग्रेड कर रहा हूँ. सो मेरे लिए भी, मेरी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है इस साइज़ के साथ बाइक चलाना. वो मेरे पर्सनल में आ गया. सो स्टार्ट डूइंग समथिंग. मैं सबको ये बोलूँगा कि अपनी फिटनेस पे काम करो. मैंने भी शुरू किया है, चाहे थोड़े से करो. डू अ 1% एवरी डे. एक दिन हो जाएगा ठीक. Guys, today we had a talk with a really amazing personality. He showed us the importance of not being judgmental about people because of their size. He told us about the importance of being passionate about your motorcycling if you are. He taught us about the importance of being passionate and developing a talent for fixing your own motorcycle so that you know more. He's also talked about what are the importance of being safe while riding and how to ride more responsibly, irrespective of what religion tells us. For all that, I would really love if you guys could share and press the like button for this video so that it reaches as many people as possible, so that this kind of passion can be built in more people.
Please press share and like for this video and subscribe to Happiness Per KM. We will get you more interesting and exclusive content like this again for you.